morning, everyone. Welcome to your TSN English class. Today we'll start the last part of a chapter from chapter number 1, the last lesson from your book Flamingo. So, start class. So, I would like to tell you before starting this video that what we have read earlier in our earlier videos, that there's a boy whose name is Franz. He's in the way of his school, and during that time he saw so many things which are which things, or those things are very very strange for him, because earlier the circumstance or the situation was different, and on that particular day everything was different. So that is why he is confused. And when he reached his school, what he the news given by his teacher, Mr. Hamill, is shocking for everybody, that that day was the last day for their French class, because due to the war between Prussia and France, France defeated in that war, and because of that, some countries like Alsace and Lorraine, these countries are merged in that, or into the have passed into the Prussian hands. So students, this one is the last video of your chapter. This is the 5th video of your chapter. Let's begin from here, with this paragraph. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba bee bee bo boo. So what is this, students? In this video, what was there, that Mr. Hamill, he is trying to grab all the memories of his past on that particular day. मिस्टर हैमिल जो हैं वो एक ही दिन में सारी मेमोरीज़ को अपने साथ ले ग्रैब करना चाह रहे थे, या लेना चाह रहे थे, या अपने साथ संजो के रखना चाह रहे थे, बिकॉज उन्हें पता था फ्रॉम नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट डे Mr. Hamill and his family, they must leave for the country. So that is why they are packing their bags, or Mr. Hamill is giving some kind of explanations in the school regarding his lesson, and he is delivering all the things he knew about his language. So basically द स्टूडेंट हुज नेम इज़ फ्रेंड्स, वो अपने टीचर की कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा है कि एक टीचर हु इज़ गिविंग 40 years सर्विस इन ऑफ हिज लाइफ एट वन प्लेस टू वन लैंग्वेज, और वो इतना डिवोटी था, उसके बाद अगर उसे ड्यू टू दैट वॉर उसे अपनी लैंग्वेज या अपने 40 years का करियर जो है वो छोड़ के कहीं और जाना पड़े, तो उन्हें कैसा फील होता है, और कितना इमोशनल ये मोमेंट उनके लिए था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन उनमें ये करेज, या उनमें ये साहस था कि उन्होंने हर चीज़ को लास्ट तक सुना. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. तो यहाँ फ्रेंड्स कह रहा है कि हमने वो सब कुछ लिखा, फ्रेंच भाषा की जो लास्ट लेसन, और जैसे जैसे क्लास होती जा रही थी उसने वो सब कुछ किया, और उसके बाद सबसे एंड में उनका हिस्ट्री का एक लास्ट लेसन था, जिसमें बेबीज़ के बोलने की या उनके रिपीट वर्ड्स को रिपीट करने की आवाज़ आ रही थी. एंड द वर्ड्स आर बा बी बी बो बू, दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letter with them. So ये सब कुछ हो ही रहा था, तो ओल्ड हॉजर जो हैं वो भी रूम में हैं थे. उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स लगाए, अपना प्राइमर अपने दोनों हाथों में लिया, एंड कुछ वो बोलने लगे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. और आप देख सकते हैं कि वो भी उस वक्त रोने लगे. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन. उनकी जो वॉइस है वो फुल ऑफ इमोशन या फुल ऑफ इमोशन से भरी हुई थी. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी
all wanted to laugh and cry. और उनको सुन के एक तरफ हंसी आ रही थी और दूसरी तरफ रोना भी आ रहा था. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. तो फ्रेंड्स कह रहा है कि कितने अच्छे से मुझे ये सब चीज़ों का लास्ट लेसन याद रहने वाला है. All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our windows. जब चर्च की जो क्लॉक है उसमें 12 o'clock का टाइम होता है. आफ्टर दैट जो सेम मोमेंट पे ही क्या होता है, ट्रम्पेट्स जो है प्रूशियन आर्मी के या प्रूशियन जो सोल्जर्स हैं उनकी ड्रिलिंग, क्योंकि वो जब फ्रेंड्स अपने स्कूल के वे में होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, तो वो सोल्जर्स ड्रिलिंग से वापस आ रहे थे. सो दो सोल्जर्स आर रिटर्निंग और दोज पीपल आर रिटर्निंग फ्रॉम दैट ड्रिल. सो दैट इज़ वाई उनके ट्रम्पेट्स की जो आवाज़ आ रही थी वो भी सेम मोमेंट पे स्टार्ट हुई. साउंडेड अंडर आर विंडोज़, और वो उनके स्कूल की विंडोज़ के अंदर तक आवाज़ आ रही थी. मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. सो वो कह रहा है मिस्टर हैमिल जो है वो अपनी चेयर पर उठे और वो ये सब कुछ देखने लगे. और वो इस वक्त फ्रेंड्स को लग रहा है कि उसने मिस्टर हैमिल को इतना टॉल हियर मीन्स इतना दुखी या इतना परेशान उसने मिस्टर हैमिल को कभी नहीं देखा, और इतने मायूस थे एक्चुअली बेसिकली वो. माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. उन्होंने ऐसा कहा, माई फ्रेंड्स सेड ही, ऐसा वो कहने ही लगे बट उनकी आवाज़ जो है वो चोक्ड हो गई. ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे इस चीज़ को लेकर बढ़ नहीं पाए. देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might. फिर उन्होंने अपने हाथ में ब्लैक बोर्ड की तरफ रिटर्न हुए, और टर्न होते हुए उन्होंने अपने हाथ में he took a piece of chalk in his hand, bearing with all his might he wrote as large as he could. जितना बड़ा या जितने लार्ज फॉन्ट साइज में मिस्टर हैमिल लिख सकते थे उन्होंने उतने ज़्यादा फॉन्ट साइज में लिखा. वाइफ लव फ्रेंड्स. Then he stopped and leaned his head against the wall. और ऐसा ये लिखकर मिस्टर हैमिल जो हैं वो वॉल के अगेंस्ट उन्होंने अपना सर जो है वो वॉल के अगेंस्ट जो है हम कहते हैं ना टिका दिया या अपने बैलेंस कर लिया. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड. और बिना कुछ बोले उन्होंने अपने बस एक जेस्चर दिया अपने हाथों की मदद से. स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो. अब आपका स्कूल जो है वो ख़त्म हो गया है और आप लोग जा सकते हैं. सो दिस लाइन दैट इज़ वाई विल लव फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज. जैसे फ्रेंच लैंग्वेज जैसी अच्छी कोई लैंग्वेज नहीं है. दिस इज़ हिज वे टू गिव रिस्पेक्ट टू हिज लैंग्वेज कि उन्होंने इतना बड़ा अपना तरफ से फ्रेंच लैंग्वेज को थैंक्स करा, उसे ट्रिब्यूट या उसे रिस्पेक्ट देते हुए अपना सर जो है मिस्टर हैमिल जो है उन्होंने ऐसे करा. और सारे स्कूल के जितने भी लोग वहाँ पे बैठे थे क्लासरूम में, दोज हु आर अटेंडिंग दैट पर्टिकुलर लास्ट लेसन ओवर देयर, तो उन्होंने उन्हें कहा नाउ ऑल ऑफ यू कैन गो और यू मे लीव दैट session. So this is basically what this is like the सिचुएशन वेयर जब हमारे पास किसी चीज़ की वैल्यू कोई चीज़ होती है तो वी डोंट वैल्यू दैट थिंग. इसमें चैप्टर में आपको एक तो ये बताया है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती. लाइक जब हमारा टाइम होता है, सो व्हाट वी हैव टू डू whenever we have time we have to try to do the things in that particular time. Don't think that oh we have lot of time or we have plenty of time to complete that thing. Just do that thing in that particular time so that you will never regret in your life that oh I missed that thing or oh I miss that thing. So this is basically a short lesson on
the situation of the people, those who lose their country or their own language, and how they felt after that. So this is a kind of effect at the school and the children of the school as well as the teachers when they lose their own language. So students, thank you. I will send you your pdfs, your question and answer, or whatever the activity work you have in your english subject. So please complete it in your school notebooks only. Okay, thank you.